Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Learn Correct English, and I hope that you people have gone through the chapter one that is in the book of George Yule. So today we are starting with another chapter that is on animals and human language, and we would be discussing the differences in the language of animals and human, and what are the features that are common only to human beings and what are the features that we observe only in the animals. So इन दोनों की languages को हम लोगों ने compare and contrast करना है, and we would be effectively by the end of this lesson would be pointing that what are the key features of the human language and what are the key or contrasting features of the animal language. So, in order to incorporate or to facilitate students from diverse linguistic repertoire, I would be using two languages that those are English and Urdu. I would be bilingual. सो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से सिग्नल्स हम लोग दे रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव तो होते हैं बट उस वक्त वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, एंड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग तो फिर वो कौन से सिग्नल्स होते हैं। एंड सेकेंडली वी वुड बी today touching a very significant feature of language, that is displacement. So in order to have perfect knowledge or grasp over these concepts, you have to make sure that you subscribe to my YouTube channel, like, comment, or you can discuss any query in the comment section, and I hope that I would reply to that very soon. And in order to bring in your mind that 100% of my viewers are non-subscribers. So अगर मैं आप लोगों को कोई नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, सो आई वुड रियली लाइक एंड अप्रिशिएट कि अगर आप यही चीज़ आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, जो नॉलेज में ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द needy people. ठीक है। So let us start today's lecture, and we would be dealing with communicative and informative signals. So, firstly, we should first distinguish between specifically communicative signals and those which may be unintentionally informative signals. हमारे पास पहले इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिकेटिव सिग्नल्स क्या होते हैं और इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलें, let us have this example. Someone listening to you may become informed about you through a number of signals that you have not intentionally sent. कोई भी ऐसा बंदा आपके बारे में नंबर ऑफ सिग्नल्स पिक कर सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस के साथ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना। ये वाली चीजें तो आप इंटेंशनली नहीं बता रहे, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग कि आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस और आई एम सिटिंग इन दिस वे। सो ये चीजें अनइंटेंशनली इंफॉर्मेशन दे जाती हैं अगले पर्सन को। सो दीज आर इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स, ठीक है, जो हम अनइंटेंशनली लोगों को देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई मे नो दैट यू हैव अ कोल्ड। किस तरह यू स्नीज्ड, द वे यू स्नीज टोल्ड मी के यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, हालांकि आपने मुझे नहीं बताया कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट the action that you performed in front of me told me that you are not well, and that you are not at ease. कैसे आप कहीं पर बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन ए ग्रुप सेटिंग कह सकते हैं, आप किसी कलीग के साथ बैठे हुए हैं, किसी बॉस के साथ बैठे हुए हैं, तो द वे यू आर सिटिंग, इफ यू आर अनईजी, यू आर शिफ्टिंग योर positions on a chair, that shows that you are not easy. ठीक है, अब ये सारी चीजें आप बता नहीं रहे, बल्कि ये आपके एक्शन से शो हो रही हैं। सो ये जो आप अनइंटेंशनली चीजों को शो कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स होते हैं। दैट यू आर डिसऑर्गेनाइज, मतलब अगर आप नॉन मैचिंग सॉक्स पहने हैं तो वो आपकी डिसऑर्गेनाइजेशन को बताएगा। दैट यू आर फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री,
you have a strange accent. Like, for example, there are many English speakers who don't have native accent, and that shows कि वो किसी और प्लेस से हैं, जहाँ पर इंग्लिश किसी और तरीके से बोली जाती है. So these all behaviors or our body language give us some hints through which we have some information regarding you. Obviously, this information is not intentionally communicated by you, but it is seen unintentionally. ठीक है. अच्छा. So, however, when you use language to tell this person, अब जब आप लैंग्वेज को यूज करेंगे, ठीक है, क्या होगा? Whenever you would use language to tell this person, I would like to apply for the vacant position of senior brain surgeon at the hospital. You are normally considered to be intentionally communicating something. अब यहाँ पर आप intentions के साथ बता रहे हैं, clarity के साथ बता रहे हैं, जिस भी जगह पर आप अप्लाई करने आए हैं, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करने आए हैं, आप हॉस्पिटल में आए हैं, आप सीनियर ब्रेन सर्जन के लिए अप्लाई करने आए हैं, तो यहाँ पर यू आर स्पीकिंग, यू आर यूजिंग दिस लैंग्वेज, यू आर कम्युनिकेटिंग. सो वेन एवर आप कोई लैंग्वेज को यूज करते हुए कुछ बात को कम्युनिकेट करेंगे, तो आप इंटेंशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं. यहाँ पर अनकॉन्शियसली आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे. सो वो होगा आपका कम्युनिकेटिव सिग्नल्स. ठीक है. इसी तरह अगर एक ब्लैक बर्ड जो है, इट इज नॉट नॉर्मली टेकन टू बी कम्युनिकेटिंग एनीथिंग. अगर उसके देखें, हम सिर्फ ब्लैक फेदर्स को देखेंगे, वो एक ब्रांच पर बैठा हुआ है बर्ड और ग्राउंड को देख रहा है, तो हम उस बर्ड को क्या कहेंगे कि वो कुछ कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा ना, वो कुछ बोल नहीं रहा. अभी अभी हमने सिर्फ उसके जो फीचर्स देखे हैं, उसकी ये जो प्लेस ऑफ सिटिंग देखी है, और द वे इट इज लुकिंग एट द ग्राउंड, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि इट इज अ बर्ड. ठीक है. और वो इजी होके बैठा हुआ है या डिफिकल्टी में है, तो वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं. बट इज कंसिडर्ड टू बी सेंडिंग अ कम्युनिकेटिव सिग्नल विद अ लाउड स्क्वैकिंग. अब जब वो लाउड स्क्वैकिंग करेगा, मतलब लाउडली वो बोलेगा, तो फिर क्या होगा? प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कैट अपीयर्स ऑन द सीन. अब उस जगह पर वो एक ब्रांच पर बैठा है, वहां पर कैट आ जाती है. सो जब वो लाउड स्क्वैकिंग करेगा, दैट शोज इट्स डिस्कम्फर्ट, इट्स अनइजीनेस ऑन द अराइवल ऑफ अ कैट. तो फिर वो जो बोल रहा है, वो बोलने के थ्रू क्या हमें कम्युनिकेटिव सिग्नल दे रहा है. ठीक है. So, when we talk about distinctions between human language and animal communication, we are considering both in terms of their potential as a means of intentional communication. ठीक है. अब हमने देखना ये है कि एनिमल्स भी बोलते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी बोलते हैं, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में क्या चीज ऐसी है, क्या डिफरेंस ऐसा है जो दोनों की लैंग्वेज को यूनिक बनाता है. ठीक है. सो वी आर कंसिडरिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एज अ मींस ऑफ इंटेंशनल कम्युनिकेशन. हमने अब जो भी आगे लैंग्वेज को डिस्कस करना है, चाहे वो एनिमल्स की लैंग्वेज को डिस्कस करें या चाहे हम ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को डिस्कस करें, तो वो हमने उसमें इंटेंशनल कम्युनिकेशन देखनी है, कम्युनिकेटिव सिग्नल्स देखने हैं, ना कि इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स जो कि वो अनइंटेंशनली देते हैं. मतलब कोई कहीं बैठा हुआ है और उसके फीचर्स को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम चीज़ों का अंदाजा लगाते हैं. हमने सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो वो बोल के हमें बता रहे हैं. ठीक है. आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू पीपल. सो डिस्प्लेसमेंट. अब हम सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है. When your pet cat comes home and stands at your feet calling meow, you are likely to understand this message as relating to that immediate time and place. अब देखें, एक पेट कैट आई है आपके घर पे, ठीक है, और वो आपके पास आके मियाऊ, मतलब ये नॉइज निकाल रही है. ठीक है. इट इज कम्युनिकेटिंग इन दिस मियाऊ लैंग्वेज. ठीक है. अब अगर आप अपनी कैट से पूछेंगे कि वो सारा दिन कहाँ थी और वो क्या करती रही थी, तो वो दोबारा से मियाऊ रिस्पॉन्स देगी. ठीक है. एनिमल कम्युनिकेशन सीम्स टू बी डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ. वो जहां पर मौजूद है, वो कैट, वो उस वक्त का ही हमें बताएगी बाय सेइंग मियाओ. हम उससे जो मर्जी पूछें कि वो कहाँ पर रही, उसका दिन कैसा रहा, वो हमें वो चीजें नहीं बता पाएगी
अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इट कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज टू रिलेट इवेंट्स दैट आर फार रिमूव्ड इन टाइम एंड प्लेस। वो हमें नहीं बता सकती सुबह उसके साथ क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, या कल उसके साथ क्या हुआ। वो सिर्फ आज के मोमेंट में हमें बताएगी, जब वो हमारे पास बैठी है, व्हेन शी इज सिटिंग विद अस, एंड शी वुड ओनली कम्युनिकेट मियाओ। इवन देन शी वुड नॉट बी एबल टू टेल अस व्हाट इज हैपनिंग विद हर। ओके, सो ह्यूमंस कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। अब देखें, कैट तो नहीं रेफर कर रही ना पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, हमें नहीं बता रही कल क्या हुआ, या अब उस परसों क्या किया उसने। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कल का भी, यस्टरडे का भी बता सकते हैं, वो फ्यूचर का भी बता सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना, टाइम के बारे में बताने की, डिस्टेंट टाइम की या आने वाले टाइम के बारे में बताने की, ये प्रॉपर्टी सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में है, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट अलाउज लैंग्वेज यूजर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या चीज अलाउ करती है? इट अलाउज द ह्यूमन बीइंग और द लैंग्वेज यूजर्स, it allows the human beings to communicate the happenings that occurred with them in the past, or the things that they are going to do in the future. Indeed, displacement allows us to talk about things and places. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फीचर है ह्यूमन बीइंग्स के लैंग्वेज में कि वो हम उसके थ्रू थिंग्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, प्लेसेस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब कैट इज नॉट गोइंग टू टेल अस अबाउट द थिंग्स, और इट इज नॉट गोइंग टू टेल अस अबाउट द प्लेसेस इट हैज विजिटेड टुडे, टुमारो और यस्टरडे। ठीक है, सो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास ये क्वालिटी मौजूद है। एनिमल कम्युनिकेशन इज जनरली कंसिडर्ड टू लैक दिस प्रॉपर्टी, सो you can learn this feature of language by heart, that this is only concerned with human beings and not with animals. ठीक है, so it is commonly asked in the MPhil or BS quizzes, and in mids or final sections. So it has been proposed that B communication may have the property of displacement. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो B वाहिद एक ऐसी लिविंग बीइंग है जिसके पास डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज किसी और एनिमल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, कि वो बता सके कि यहाँ पर कोई फूड है, कोई पोलन है, जिससे वो आके they can have their food or pollen extracted. For example, when a worker bee finds a source of nectar, uh, there is a worker bee, और उसको कोई नेक्टर मिलता है किसी फ्लावर में, एंड रिटर्न्स टू द बी हाइव, वो वापस अपने बी हाइव में जाती है। It can perform a complex dance routine to communicate to the other bees the location of this nectar. ठीक है, अब वो क्या करेगी? It will go to the beehive again. ठीक है, वहां जाके वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में मूवमेंट्स करेगी। ठीक है, ताकि जो अदर बीज हैं उनको भी पता चले कि कहाँ पर नेक्टर की लोकेशन है, वहां से जाके वो भी नेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Depending on the type of dance, round dance for nearby and tail wagging dance with variable tempo for further away and how far away. So अब ये उसके मूवमेंट्स हमें बता रहे हैं कि कैसे वो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैसे वो हमें बताती है, हम हमें इन अ सेंस कि जो उसके बी फेलोज हैं, बाकी बी फेलोज, उनको कैसे बताती है कि कोई नेक्टर करीब में है। अगर वो गोल गोल घूमेगी, ठीक है, बी अगर गोल गोल घूम रही है, अपने बी फेलोज को बता रही है, तो गोल गोल घूमने का मतलब है कि इट इज नियर बाय, यहाँ पर करीब में एक नेक्टर है। ठीक है, सो अगर वो अपनी टेल को साइड पे वैग करेगी अपने वर्कर बीज के साथ, मतलब ये समझे उसकी टेल है और वो इसको साइड पे वैग कर रही है, इस तरह, ठीक है, इस तरह का मोशन है। सो जितना टाइम से वो वैग करेगी और जिस एंगल तक पे वो वैग करेगी, वो शो करेगा वर्कर बीज को कि वो जो नेक्टर का जो प्लेस है वो कितना दूर है। ठीक है, तो द अदर bees कैन वर्क आउट वेयर दिस न्यूली डिस्कवर्ड feast कैन बी फाउंड। ठीक है, सो थ्रू these राउंड और wagging ऑफ द टेल ऑफ दैट bee, these bee
network can have the idea where the nectar is to be found, whether it is nearby or at a far away place. So सिर्फ यहाँ तक एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में वो डिस्प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं जो बी का नेटवर्क है, ठीक है। So doesn't this ability of the bee to indicate a location some distance away mean that bee communication has at least some degree of displacement as a feature? ठीक है, कुछ हद तक उसके पास डिस्प्लेसमेंट की फीचर है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की तरह भी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकती। इट कैन नॉट कम्युनिकेट द आइडियाज, लाइक फॉर एग्जांपल अबाउट द प्लेसेस, अबाउट द थिंग्स दैट इट हैज सीन। ठीक है, इट कैन ओनली टेल द अदर बीज बाय इट्स राउंड राउंड मोशन और द वेगिंग ऑफ द टेल कि नेक्टर कहाँ पर है। इसके अलावा वो कुछ और नहीं बता सकती। द क्रूशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व of course is that of degree. B communication has displacement in an extremely limited form. जो मैंने आपको भी बताया कि सिर्फ वो नेक्टर या फूड सोर्स को देखने के लिए वो अपनी मूवमेंट्स को कर सकती है डिफाइन, उसके थ्रू वो डिस्प्लेसमेंट बता सकती है। बाकी उसके अलावा उसके पास मतलब कोई आइडियाज डिस्कस करने के लिए, चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, थॉट्स कम्युनिकेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का अनलिमिटेड फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है। Certainly, the bee can direct other bees to a food source. However, it must be the most recent food source. It cannot be that delicious rose bush on the other side of the town that we visited last weekend, nor can it be, as far as we know, possible future nectar in bee heaven. वही बात होगी कि जो बहुत करीबी उसके पास एक फ्लावर है या कोई नेक्टर की सोर्स है, वो सिर्फ उसको कम्युनिकेट कर सकती है। वो बाकी बीज को ये नहीं बता सकती डैट इट हैज सीन नेक्टर फ्यू डेज बैक और फ्यू वीक्स बैक एंड इट इज लोकेटेड एट सम अदर टाउन, या वो किसी और शहर में उसने नेक्टर देखा था, वो ये नहीं बता सकती। सिर्फ जो नियर बाय नेक्टर है वो सिर्फ उसके बारे में हिंट्स दे सकती है, सिग्नल, या अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है अदर फेलो bees को। So that is how this feature of displacement is restricted in bees, and it is unlimited in human beings and their language. So I hope that you people have got the idea or the difference that is in between the human language and the bee language in particular, and how they both use the feature of displacement in their language, and how this feature of displacement or telling us about the actions that happened in past or future is absent in animal communication, and animals cannot tell us about their happenings or their plans that they have to do in future. सो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई होप कि आपको इस बारे में बहुत क्लियर आइडिया हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर करें विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के साथ कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट का सीन, और फिर बीज कैसे डिस्प्लेसमेंट को यूज करती हैं, ठीक है। आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड that is all for today. And I hope you people to follow my YouTube channel. Thank you.